Hello and welcome to your channel, The Knowledge Hub. And let's share a little bit more of knowledge here. So my grade 9 students, you food production hand manual. And this is unit 5. The title is personal hygiene. This is a very, very important topic. It is something that is part of our life. We always have to be hygienic. That is, we always have to be clean. That is just what this unit is about. We're going to learn why we should be clean, the types, the reasons, and where should we keep our hygiene maintained. And don't forget, we are talking in terms of food production, so we're relating this to our kitchen. Personal hygiene is there for each and every individual on earth, but our main focus is still going to be our kitchen. Okay, so personal hygiene, what is the importance? Now, it is very important for any food production personnel to maintain the personal hygiene. It is important due to so many reasons. So, you see, we are back on track, food production personnel. Apart from us being an individual, as people that are working in a kitchen, we are cooking food for the world. So, we have to maintain our personal hygiene. And what are the reasons? It can be due to personal reasons, social health, and it is the way of living a good life too. You know what? This is just common sense. If you take bath, if you keep yourself clean, you naturally have confidence. And on the contrast, if you are kind of that, it's cold, it's really cold, I can't take bath, it's nearly 2-3 days you haven't taken bath, you yourself, you will kind of have lack of confidence. You won't be like self-reliable. You will be like, should I sit in between people? What if I stink? You know, there will be always negative thoughts around you, negative vibes. So for personal reasons, see, you really have to be clean. Now, let's quickly jump to the main part. And why do we have to keep personal hygiene as a food production personnel? So to begin with, body image. Now, the person having depression and neglected feel will have low self-esteem, which is also applicable while maintaining the personal hygiene. The well-maintained hygienic body will also have charming personality and attractive impression on others and also gives confidence too. As I just said, देखिए, whenever you are personally maintaining your hygiene, आप नहाए हैं, आपने सही से अपने hair set किए हैं, your fingernails are clean, your feet, your shoes, everything is in order, you will naturally have a charming personality, attractive impression. अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे फूड प्रोडक्शन पर्सनल्स में 2 वेटर्स होते हैं, एक वेटर है जो फुली क्लीन है, फुली मेंटेन कर रखा है उन्होंने अपने आप को, ओके, यूनिफॉर्म भी उनकी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड है, आयरन है, क्लीन है, ओके. एंड जो हमारे दूसरे वाले वेटर हैं वो थोड़ा सर झुकाए खड़े हैं एंड उनके चेहरे से लग रहा है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग. वो थोड़े परेशान भी लग रहे हैं एंड उनकी यूनिफॉर्म भी ज़्यादा प्रेस नहीं हुई हुई है. वो बंदा मे बी परहैप्स उन्होंने 2 दिन से मे बी ही हैज़ नॉट टेकन बाथ, कोई रीज़न होगा, मे बी ही इज़ नॉट फीलिंग फाइन, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. मेन बात हमें ये समझनी है कि अगर हम अपने आप को साफ रखते हैं, हमारे अंदर एक पर्सनालिटी ऐसी उभरती है नेचुरली कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, हम लोगों से मिल सकते हैं एंड लोग भी हमारी तरफ जब देखते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं. ओके, टेक इट इन दैट वे कि वी आर प्रेजेंटेबल. लेकिन जो बंदा ऑलरेडी डिप्रेशन नेग्लेक्टेड फील करता है, नेग्लेक्टेड दैट इज जब हम इग्नोर करते हैं, उनकी ऑलरेडी कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है. ओके, सो दैट इज बॉडी इमेज. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल रीजंस, by ensuring that our body is clean and well presented, we become more assured of projecting a positive body image that reflects our personality. Now, for example, the same thing in our hotel or restaurant when we are called to present or to do some work. So, एक natural होता है कि हम अपने रेस्टोरेंट में हैं या होटल में हैं एंड हम जैसे ही कोई गेस्ट आता है, हम जो पूरी हाइजीन में हैं, हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते हैं, वेलकम करते हैं, मेन्यू कार्ड्स देते हैं, एक सेल्फ प्रेजेंटेशन की कॉन्फिडेंस आती है हमारे अंदर कि इट्स ओके, जहां भी बुलाओ, जहां भी जाना पड़े हम जाएंगे एंड हम अपना काम कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं.
चाहे वहां पर 10 लोग हों 20 लोग हों, एंड इससे ना हमारी पर्सनैलिटी ही रिफ्लेक्ट होती है, दिखती है कि हाँ दिस गाय इज डूइंग हिज वर्क करेक्टली, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये अपना वर्क सही से कर रहे हैं. दिस इज सोशल रीजन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ रीजंस, देखिए आप सफाई नहीं रखेंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी. अगर आपके नेल्स गंदे हैं, उसमें बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, एंड देन आप अपने चेहरे पे लगा रहे हैं अपने हाथ, जो लोग नेल बाइटिंग करते हैं, ठीक है, नाखून चबते हैं, उनको नाखून से ये चीज, ये बैक्टीरिया उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है एंड ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको अगर हम सही टाइम पे ट्रीट ना करें तो इट कैन इवन बिकम वर्स. सो हमारी जो हाइजीन है, अगर इन एनी केस आपकी तबीयत खराब है या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई ओपन इंजरी है आपकी बॉडी पे, तो इसे फौरन ट्रीट करना चाहिए. ये भी हाइजीन मेंटेन करने का एक रीजन है, हेल्थ रीजन. एंड देन साइकोलॉजिकल रीजन. A well-presented person will have a confident behavior and will impress others too. Maintaining a hygienic practice helps to reduce the risk of ill health. Okay, जब हम अपने दिमागी दिमाग से रिलेटेड बात करें, तो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि वो ग्रुप मुझसे बात नहीं कर रहा है, या जो गेस्ट आ रहे हैं वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझसे कोई काम नहीं कह रहे हैं. एंड मैं गया भी था मेन्यू लेकर, लेकिन उनका जो रेस्पॉन्स था मेरी तरफ, इट वाजंट नाइस. एंड ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है. अगर आपने अपने आप को हाइजीनिक नहीं रखा है, साफ एंड प्रेजेंटेबल नहीं रखा है, सो सामने वाला भी आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, है ना. सो आप अपने आप को बिल्कुल प्रेजेंटेबल बनाएं, अपने आप को बिल्कुल परफेक्टली दिखाएं दैट यस आई एम नीट, आई एम हाइजीनिक, आई एम क्लीन. अगर आप ब्रश नहीं करते हैं, आपको थोड़ा डर लगेगा स्माइल करने से कि मे बी 1% मेरे मुंह में से स्टिंकिंग की स्मेल आएगी या मेरे दांत साफ नहीं है. पर अगर आप अपना पूरा ध्यान रखते हैं एंड आप कंस्टेंटली मॉर्निंग नाइट ब्रश करते हैं, यू कैन गिव अ गुड स्माइल. आपके अंदर कॉन्फिडेंस नेचुरली दिखेगी, ठीक है. सो साइकोलॉजिकली भी ये बहुत बड़ा रीजन है कि हमें अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है. अगर हमें कोई इग्नोर करता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम सोचना शुरू कर देते हैं, जो कि फिर मेंटली रिस्क होता है, हमारा एक मेंटली इम्बैलेंस हो जाता है. सो मेक श्योर यू कीप योर सेल्फ हाइजीनिक. एंड देन हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, हम हाथ कैसे धुलते हैं. ओके, ये एक बहुत नेसेसरी पार्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरियाज एंड जर्म्स हमारे हाथों से ही स्प्रेड होते हैं, हाथों से कंटेमिनेशन होता है. नाउ बिफोर व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू वर्क, जो कि कोई भी अगर ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आपको डायरेक्टली फूड को हाथ लगाना है, ठीक है, इवन इफ यू आर गोइंग टू वेयर ग्लव्स, इट इज नेसेसरी, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक अच्छे हैंड लिक्विड से, हैंड वॉशिंग लिक्विड या सोप से हाथ धुलें एंड उसके बाद आप अपने हाथ को सुखाएं. वाइप योर हैंड्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द जॉब. एंड जब भी आप रॉ इंग्रेडिएंट्स हैंडल करें, फॉर एग्जांपल अगर आप पोटैटोज पील करते हो या वेजिटेबल्स कट करते हो, देखो इन्हें जब हम परचेज करते हैं मार्केट से, ये बिल्कुल साफ चमकदार तो आते ही नहीं है, इन पर डस्ट भी होती है, ओके, मिट्टी भी लगी हुई होती है, जैसे कि रूट वेजिटेबल्स होते हैं, ओके. एंड इन पे अगर मॉइस्चर होता है तो वो मॉइस्चर भी डस्ट के साथ मिल जाता है, गंदा हो जाता है. सो उन्हें आप वॉश करें, उन्हें कट करें और उसके बाद अपने हाथ बहुत अच्छे से धुलें, ठीक है. इससे आपके खुद का भी प्रोटेक्शन है एंड जो फूड आप बना रहे हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हैं, वो भी साफ रहते हैं. उसके बाद स्मोकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इन तीनों चीजों के बाद इट इज कंपल्सरी दैट यू वॉश योर हैंड्स वेरी वेल with a good hand liquid or with soap, and then using a handkerchief or a tissue. And whenever you have washed your hands, it is good that you wipe your hands with a tissue paper and then you dispose that tissue paper. टिश्यू पेपर आप यूज करें, उसके बाद आप फौरन उसे डस्टबिन में डाल दीजिए, ठीक है. देन any part of your body. Now our body contain a lot of minute germs, minute that is very tiny, जो हम अपनी normal eyes से देख नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप के, ठीक है. एंड अगर हमारा कोई भी फूड प्रोडक्शन पर्सनल, फॉर एग्जांपल उन्हें इचिंग हो रही है उनकी एल्बो में
या उनके नेक में खुजली आ रही है, दैट इज इचिंग, एंड वो खुजलाते हैं, यू नेवर नो कोई बहुत बारीक कीटाणु उनके हाथ पे आ जाता है। अब अगर हमें वो अवॉइड करना है कि वो हमारे खाने में ना आए, इमीडिएटली बेहतर है कि हम जाके अपने हाथ धो लें बहुत अच्छे से। एंड देन क्लीनिंग और टेकिंग आउट गार्बेज, गार्बेज दैट इज द रबिश, जो कूड़ा होता है, जो कबाड़ होता है हमारे किचन्स में, जब भी आप डस्टबिन को खाली कर कर आए, फौरन आपको अपने हैंड एक अच्छे हैंड वॉशिंग लिक्विड से धुलने चाहिए। एंड देन वॉशरूम, यस दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को हमेशा से सिखाया जाता है बचपन से कि the moment you in contact with the washroom, after visiting the washroom, the toilets, you should make sure you wash your hands very very well, okay, in between your fingers, around your thumb, around the fingernail, बहुत अच्छे से आपको धुलना चाहिए। देखो, washing hands is a very good way to reduce the chance of contaminating food with bacteria. Contaminating is this simply means कि हम अपने खाने में जब मिलावट करते हैं, ओके, वो भी बैक्टीरिया एंड जर्म्स की, तो अगर हमें अवॉइड करना है, सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि हम हमेशा अपने हाथ साफ रखें। एंड किचन में अगर आप वार्म वाटर यूज करें, ठीक है, हल्का नींबू पानी, वो सबसे अच्छा रहता है, ओके। एंड देन जो हमारा बैक पोर्शन है हमारे हैंड्स का, हमारी रिस्ट मतलब कलाई, एंड देन इन बिटवीन द फिंगर्स, फिंगर्स के बीच में अगर हम इन्हें बहुत अच्छे से धुलें एंड देन उसके बाद बहुत अच्छे से सुखाएं, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मेथड ऑफ कीपिंग अवर फूड क्लीन, ओके। So in this chapter, what did we learn? We learned about personal hygiene, the importance of personal hygiene, okay, and then different aspects. हम क्यों रखते हैं personal hygiene? देखिए, for personal reason, for social reason, it's a way of life, for psychological reasons, ठीक है, and then hand washing की जो techniques है हमारी, before and after, किस तरह से हमें कब अपने हाथ धुलने चाहिए, ठीक है। So our review questions here we have: prepare a chart on different hand washing techniques and submit the chart to your teacher for assessment. So hand washing techniques है, आपको उस पे एक chart बनाना है। Now look at this assessment. The washing of hand is necessary. What do you think here? यहाँ पर क्या आना चाहिए? अगर हम washroom जा रहे हैं, ठीक है, so washroom में जाने से पहले एंड बाद में कब धुलने चाहिए हाथ? The washing of hands is necessary before and going to washroom. Yeah, is necessary when going to the washroom. What do you think इसका आंसर हो सकता है? Think very well. अभी मैंने आपको बताया ही था that when you're visiting the washroom क्या होना चाहिए. So if I put the answers here before and after. अच्छा देखो, हम before क्यों धुल रहे हैं washroom जाने से पहले? For example, आपने अभी कुछ खाया है, so आपके हाथ पे मसाला वगैरह लग गया, ये अभी आपने कुछ बनाया है, कोई कुकिंग करी है जिससे कि आपके हाथों पे कोई ड्राई इंग्रेडिएंट्स या आपने कोई कटिंग करी है, ठीक है। सो कोई भी अगर इन्फेक्शियस या कोई भी बैक्टीरिया जैसा स्टफ आपके हाथ पे लगा है, आप उसे धो सकते हैं। एंड वॉशरूम से आने के बाद यू मस्ट वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, ओके, विद सोप एंड वाटर। देन डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पर्सनल हाइजीन। वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये है हमारे हैंड्स, ओके। द हैंड, व्हेन आई से हैंड, जो हमारे हाथ हैं, द हैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ज्यादातर 99% बैक्टीरियाज एंड इन्फेक्शंस हमारे हाथों से स्प्रेड होते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। नाउ नेम टैग, एज हमने पढ़ा था अर्लियर, इट इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, ठीक है, ये भी हम जानते हैं। Okay, and then look at this. The chef coat should be double-breasted. True. The shoes used in the kitchen should be of cotton. That is false. Then apron protects the head part of the kitchen personnel. Okay, and this is also false. Now the students can be demonstrated about the different hand washing techniques. They can be asked to prepare some charts related to this. हम हाथ कैसे धुलते हैं, क्या तरीका है, the back of the hands, okay, in between the fingers, इन सबको हमें बहुत अच्छे से धुलना चाहिए। So dear students, once more let me remind you, we're talking about personal hygiene, ठीक है। Personal hygiene, it simply means the way we take care of our body, the way we keep ourselves clean, our hands should be clean, our clothes should be clean. इससे क्या होता है, हमें naturally एक self confidence हमारे अंदर रहता है, ठीक है। So this was about
personal hygiene.